Hello everyone, welcome to our channel X1 Trader. Today is 26th April 2024 and this video is for next week, for first week of May. And in this video we will discuss about chart setups and trading strategies in Nifty, Bank Nifty, stocks and commodities. As per our X1 system, which you can see on the screen, this is X1 system and this is Bank Nifty spot chart. Hash means spot chart. If you want to see futures chart, you can go to this section. Here you can see all symbols list, and here in this NSE futures you can see all instruments, and you can see many other folders like MCX, NCDX, Forex, cryptos, everything will come in this particular software. And you can see global indices and commodities charts also. And this system and all our trading systems are for all world markets, not only for Indian market. You can trade any market, any time frame with our trading systems. And you can see in this Bank Nifty, I think last week video we were somewhere here. Buy signal was ready, but we have to buy above this one. But next day morning we got a gap up, and in this gap up whenever we get a gap up, what we will do, we will wait for 15 minutes candle to close, and we'll place buy order above this particular level, but that particular level is not crossed. Why we do like this means we have gap trading strategies video. You can go through that because this is our channel website. You can go through this one, or if you go to our playlist section, you can see gap trading strategies video will be there. In this video we have explained how to trade gaps. We have got 4 types of gaps, fake gap, weak gap, real gap, normalized gap. So all those things are explained there. Please go through that. So whenever we get a gap up, we buy above this particular level by adding 20 rupees spread for Bank Nifty, 10 rupees for for Nifty, and for stocks we will add that 20 paise for every 100. So all these this system, everything is rule based here. Entry, stop loss, exit, everything is rule based. So even if you want to place order, we have rule how to place that order. So we always place stop loss by order. So this particular order which we have kept that is not triggered. So after gap up, we have placed order here, and the next step is wait for next 1 hour, ignore this particular candle, and next 4 candles will be 1 hour time frame. So this particular candle high plus spread will be the trigger price. So there you can see our buy signal got triggered, and even STF started supporting. So we have kept our pending position as it is. So long position we have carried forward. You can see earlier we had a sell signal. It is already explained in the previous videos. You can go through that. So zero crossover has happened here, oscillator zero crossover. This was our first buy signal. So this is our 4th best buy signal. This point I have been explaining in many videos. You can go through our previous videos. So this signal is our 4th best buy signal, and you can see after this signal is triggered, next day there was a okay movement, and then next day morning you got a gap down. So in this gap down whenever you get gap down, first of all you have to see these 2 things, color of this particular candle and this indicator. So if it is red color and it is also red, then it will be a real gap. If it is not red color, this is a weak gap, because it has become red color. Okay, this X1 signal, sell signal has come. So whenever you get weak gap, either you can take a buy signal, or you can just wait for a new sell signal to get. But here there is no sell signal. So previous buy signal is running. Whatever position that you have in the long position, same position is being carried forward. So this is one more opportunity to take a long position. If you have taken the trade, you got excellent profit, because I used to tell you many times, there is no rejection pattern here. Rejection is our 5th best signal, buy signal. So here you can see there was a rejection from this particular indicator. So all these things will be explained to you in training. So here we have a buy signal running, and this signal got triggered somewhere here, and this is one more opportunity to take a long position. If you have taken that position, already you are in 400-500 points profit. Even from here also you are in profit. So as of now you can see HTF is blue color, so there is no problem. We can keep our long position. And you can see here there was a zero crossover of oscillator. This is the minus point for this chart. So as of now buy signal is running, and higher time frame indicator is supporting. Boxes are okay, so there is no big danger to our position. If you get a valid sell signal, take that because in our system if you get valid buy signal will buy, valid sell signal will sell. So don't trade each and every arrow. Every arrow is not a valid signal. So for valid signals, first of all you have to see what is the present zone of that chart, and depending upon the zone color our conditions will be different. So right now it is in gray color. So from where we will see this particular color, from zero crossover we will see what is the color of this indicator, this gray color zone. So now it is in neutral zone. So in neutral zone, if you want to take a sell position, we need only 2 conditions.
If it is uptrending zone or downtrending zone, we want to know three conditions. This point is explained many times. So as of now, Bank Nifty is in neutral zone. So this particular trading system, no, whenever you see any chart in the system, you will know a lot of things. No, first point you will know is what is the present zone of this particular chart. And next, no, you will not be trapped in consolidation. So no trapping in consolidation, and you will not be trapped in gaps also. Fake gap, weak gap. No, we have got some classification, and you will be knowing the signal strength. For example, no, in the last week video you can see I told you it is not so strong signal, because no, in this particular signal you can see dots have formed. When dots have formed, no, it will not have that much strength to go up, no, very fast. Of course it has gone up 600-700 points, but no, this is not like previous signals, no, where we used to get no straightforward trend. So whenever, no, in previous sell signal, if it has gone into there's no bearish mode, it is not downtrending zone, but it is a bearish mode, so it will take some time to recover some strength and, no, then again give you trend. But as of now, zero crossover has happened. I am expecting a sell signal, so let that signal come. If a sell signal comes, if valid signal comes, no, valid means conditions must be satisfied. So if conditions are satisfied, then you can take that sell signal, because that will be almost, no, fourth best sell signal in this chart. So wait for a sell signal in Bank Nifty. Otherwise, no, same signal will continue. As of now, there is no problem for your long position. And let us go to the Nifty chart. In Nifty, little bit of, no, disturbance is there. So here also you can see we have a sell signal running in the previous this one, and it is not valid, and ये भी यहाँ पे not valid. So ये क्यों यहाँ पे वैलिड नहीं है बोले तो, सी इट इज़ इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. निफ्टी हैज़ गॉन डाउन ट्रेंडिंग जोन. डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक में बाई आए तो वी नीड थ्री कंडीशंस टू टेक दैट बाय सिग्नल. बट यहाँ पे ओनली वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड समवेयर हियर. एंड इसके ऊपर बाई करने के बाद में जीरो क्रॉस ओवर हो गया था एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल. So on this day I was waiting for this level to break, no, with candle color also red color. यहाँ पे देख लीजिए सेल सिग्नल आया था. अगर ये कैंडल रेड हुआ तो अपन क्या करते थे, इसके नीचे अपन सेल ऑर्डर लगाते थे. दिस विल बी अ स्टॉप लॉस. बट आफ्टर सम टाइम यू कैन सी, नो, दिस पर्टिकुलर रिजेक्शन हैज कम एंड अगेन इट हैज गॉन अप. सो दिस सिग्नल तो आ गया चार्ट में, बट इट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल. वैलिड क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, टू बिकम वैलिड सिग्नल फिल्टर मस्ट बी रेड, कैंडल मस्ट बी रेड, बॉक्स मस्ट बी रेड. यहाँ पे देख लीजिए ना, मैं कर्सर लगाता हूँ, एक क्रॉस हेयर लगाता हूँ, एक बार देख लीजिए. व्हेन द सिग्नल हैज कम, filter is red but candles are not red, so candle has to become green. These candles are not normal candles, these are our X1 candles. Normal candlestick चाहे तो you can, no, click this particular, no, ये जो है ना, यहाँ पे आप ये click कर सकते हैं, you will get normal candlesticks. You can see now these are normal candlesticks. But if you go back to the bar chart again, no, you can see these are X1 candles. So whenever you get a sell signal, filter candle box must be red color and dots also must become red color. There is no rule that यहाँ पे immediately यही candle पे होना बोल के नहीं है. Sometimes, no, after 1-2 candles, no, candle may become red color, box may become red color. All those conditions may get satisfied after some candles, but finally we will think it as a valid signal only when conditions get satisfied. And right now you can see whenever this particular, no, ये buy signal, ये first sell signal ट्रिगर नहीं हो के अगर ये बाई आता, दिस इज, नो, नॉट वैलिड सिग्नल, इट्स ओनली कंटिन्यूएशन. नाउ दिस इज कॉल्ड सेमी ट्रेंडिंग जोन. सो इन दिस एरिया, इन दिस कंसोलिडेशन, यू आर नॉट ट्रैप्ड. बट मेनी पीपल गॉट ट्रैप्ड हियर, मेनी पीपल शॉर्टेड इन दिस पर्टिकुलर डे, अगेन दे वेंट लॉन्ग, अगेन मार्केट हैज कम डाउन. बट हमारा सिस्टम में यहाँ पे बाई सिग्नल चल रहा, ये दोनों भी सिग्नल्स नॉट वैलिड है. एंड अभी आज, नो, यू कैन सी सेल सिग्नल हैज कम. सो हियर, नो, सेम conditions you have to look, no, a filter candle box plus dots must be red color. So यहाँ पे देख लीजिए filter भी red है, candle भी red है and box भी red है. So Monday morning इसका low breakdown हो गया तो then we'll be taking a new sell signal, sell position. So Nifty में sell का setup ready है, but Bank Nifty में sell का setup ready नहीं है. So whenever you see like this, no, whatever position that you have, first of all you exit. No, why do you want to take risk? Tomorrow morning, Monday morning, maybe a gap down, no, 200 points, 100 points. So when your sell signal is ready, just exit. No, tomorrow, Monday, if again, no, market opens flat, then you can take one long position and wait for this signal to give you valid, no, breakdown. So इसका नीचे अपन 10 points माइनस करके सेल ऑर्डर लगाते हैं. सो निफ्टी में सेल सिग्नल रेडी है, बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल इज नॉट एट फॉर्म. सो निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है. स्ट्रांग इन द सेंस बेटर देन निफ्टी चार्ट. ये भी थोड़ा वीक ही लग रहा मुझे,
क्यों बोलते हो डॉ जोन्स का चार्ट में, आई शो यू डॉ जोन्स चार्ट कहाँ चले गया, डॉ जोन्स का चार्ट में देख लीजिए फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 0 क्रॉस ओवर हो गया, दिस सिग्नल इज अवर फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो जो रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक चार्ट्स में, दीज रूल्स आर अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी मार्केट। ये नाम से अपना मतलब नहीं है, वॉट एवर इज दिस नाम, लेट इट बी गोल्ड, लेट इट बी सिल्वर, लेट इट बी यूरो यूएसडी, लेट इट बी बिटकॉइन चार्ट। बिटकॉइन में भी वी हैव नो फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल, लेट मी शो यू बिटकॉइन चार्ट। ये X1 सिस्टम है, इफ यू वांट नो यू कैन सी चार्ट इन X2 ऑल्सो। सो बिटकॉइन में भी देख लीजिए, एलियर इट वॉज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, यहाँ पे देख लीजिए बिग ट्रेंड हैज कम एंड बाय सिग्नल हैज कम, नॉट वैलिड हियर, इट हैज बिकम वैलिड समवेयर हियर, all conditions got satisfied and then afterwards you can see it has gone up and now you got a sell signal which is fourth best sell signal। क्यों बोले तो ये 0 क्रॉसओवर हो गया, फर्स्ट सिग्नल इज फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल, ये ट्रिगर हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस है। दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग है, 1 आवर टाइम फ्रेम में बड़ा ट्रेंड आता आपको, गिरे तो ये 2-3 हज़ार पॉइंट गिरता, नहीं तो रिवर्स हो गए तो रिवर्स करेंगे। हमारा सिस्टम में देख लीजिए, वैलिड बाय सिग्नल आया तो बाय करो, वैलिड सेल सिग्नल आया तो सेल करो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करो, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करो, बिटकॉइन का चार्ट में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बिटकॉइन में रिवर्स करके पैसे रिकवर करना चाहिए। अगर निफ्टी का चार्ट में रिवर्स हो तो निफ्टी में ही रिकवर करना चाहिए। निफ्टी का लॉस जाके रिलायंस से, रिलायंस का लॉस जाके आईटीसी से, ऐसा रिकवर नहीं करना। If Nifty is giving you loss, you have to recover loss from Nifty. If Bank Nifty has given you loss, you have to recover loss from Bank Nifty. So अभी बिटकॉइन का चार्ट में सेल सिग्नल है। X1 में काम करना बोल तो इसमें लंबा स्टॉप लॉस लेना पड़ता है 1 आवर टाइम फ्रेम में। फॉर दिस वी हैव गॉट अदर टेम्पलेट्स ऑल्सो, लाइक 5 मिनट्स का टेम्पलेट है, 15 मिनट्स का भी टेम्पलेट्स है, बट दिस सेटअप इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन हायर टाइम फ्रेम्स। एक बार गोल्ड का भी देख लीजिए, इसका वैल्यू आपको पता चलता गोल्ड कहाँ पे है। सो ये सिस्टम में देखो कितना बड़ा ट्रेंड्स मिलता है आपको, ये अप ट्रेंडिंग जोन में है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, फाइनली ये वैलिड है, नॉट सो स्ट्रांग, ये वीक सिग्नल है। अभी आपको बाई सिग्नल आए तो थोड़ा जूम करता हूँ, देख लीजिए 0 क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे। अगर इसमें बाई तो आ गया ऑलरेडी, बाई का सिग्नल तो आ गया, सो दिस इज अ वेरी गुड बाई सिग्नल। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा बोल तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1000 पॉइंट, नॉट 1000 पॉइंट, सॉरी, वेरी बिग डाउनफॉल। क्यों बोल तो ये फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल शुड नॉट फेल। If fourth best buy signal is failing, that means no, there is no strength in this one. This is going to give you good downside move, डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट होने का चांस है। उतना इजी नहीं है ये गिरना, थोड़ा नीचे आता फिर ऊपर जाता, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, सो उतना इजीली हज़ारों पॉइंट या 100 पॉइंट नहीं गिरता। सो इतना कंसोलिडेशन में भी यहाँ पे देख लीजिए देयर इज़ नो फेक सिग्नल, सिग्नल तो आ गया बट नो नॉट वैलिड। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, X1 सिस्टम इज़ 100% रूल बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे आप गेस नहीं करना चाहिए, जब तक आपको ऐसा ग्रीन कलर का रिबन है तब तक ऐसे ही लोगों को ट्रैप करता, ये ऐसे ही थोड़ा नीचे आता बोल के लगता, नीचे नहीं आता। यहाँ पे देखो ना कितना ऊपर है, एक बार मैं जूम ये ऑटो स्क्रॉल निकालता हूँ, देख लीजिए बाई सिग्नल इज फ्रॉम वेयर, नो दिस वॉज अवर बाई सिग्नल। ये एक्चुअली यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रिगर समवेयर हियर बिकॉज नो डाउन ट्रेंडिंग जोन था, यहाँ पे ट्रिगर हुआ। इसका लेवल देख लीजिए 2000 जो भी है, ये 2040, सॉरी नॉट 40, मे बी 20, कहाँ पे है ये 2022। सो 2022 से नाउ वी आर एट 2345। सो वेन एवर दिस रिबन कम्स, नो ये रिबन स्टार्ट हुआ तो बड़ा ट्रेंड आता बोल के इसका मीनिंग है। कितना बड़ा आता वी डोंट नो, अगर यहाँ पे मुझे मालूम है तो पूरा प्रॉपर्टी बेच के मैं इसी में बाई करता था, बट वी कैन नॉट से लाइक दैट। बड़ा ट्रेंड आता भाई, कितना बड़ा आता वी डोंट नो। सो क्या करते हैं आप, आपके पास 4 लाट है ना तो 2 लाट है, तो 1 लाट को बुक करो प्रॉफिट वेन एवर यू गेट दिस सिग्नल फर्स्ट एरो, और दूसरा जो लॉट है ना वो वेट करो आप जब तक आपको इसमें वैलिड सिग्नल नहीं मिलता। इसमें क्या होता, अप ट्रेंडिंग जोन में ऐसे लोगों को ट्रैप करता, सेल आता फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। लोग जो भी ट्रेडर से इसमें ट्रैप होते, दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। बट हमारे पास ये सब इनवैलिड है बिकॉज ऑफ रूल्स, दीज आर नॉट वैलिड सिग्नल्स। सो इसीलिए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फाइनली ये कैसे वैलिड हुआ बोले तो इसमें अपना रूल सेटिस्फाई हो गया, बट स्टिल नो विल नॉट बी टेकन दिस पर्टिकुलर सिग्नल बिकॉज इट्स ए वीक सेल सिग्नल। अभी जो सिग्नल आया ये अच्छा सिग्नल है, ये ले लो, ट्रिगर हो गया क्या, ये स्प्रेड के साथ में लेना पड़ता, 2349, 2352 ट्रिगर हो गया शायद ये, ठीक है।
तो ऑब्जर्व कीजिए इसमें क्या होने वाला है। गोल्ड का चार्ट मैं आज बना रहा हूँ 26 अप्रैल को। सो ये आपको कल नहीं आज ही मिल जाता है वीडियो। सो 2-3 दिन के बाद में ऑब्जर्व करो ना ये चार्ट में क्या हुआ। अगर नीचे जा रहा हो तो कहीं ना कहीं हमारे पास सेल सिग्नल आता और वही रिवर्सिंग और पोजिशन। सो हमारा सिस्टम में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करते रिकवर करते, सिंपल बात है, वाट एवर बी दैट चार्ट। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का अपन सेटअप देखे एंड ये भी देखो ना एक बार, ये हमारा लाइट वर्जन है, इट इज़ रीनेम टू X2 सिस्टम। यहाँ पे देखो ये जो सिग्नल है ना, ये पुल बैक का सिग्नल बोलते हैं। इसमें कुछ भी रूल नहीं रहता, फर्स्ट एरो पे बाई करना चाहिए, फर्स्ट रेड एरो पे सेल करना। फर्स्ट पुल बैक इज बेस्ट पुल बैक, सेल करो यहाँ पे, नहीं तो पुट ऑप्शन ले लो और दिस विल बी योर टारगेट। बाद में नीचे गए और भी, बट वो अपन इसको ट्रेल कर सकते, बट दिस इज़ आवर टारगेट। एंड इसमें भी देखो ना आपको कल मॉर्निंग गैप डाउन आया था एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल। इफ़ यू हैव टेकन दिस सिग्नल ऑलमोस्ट नो 300-400 पॉइंट्स यू गॉट इमीडिएटली। एंड अभी निफ्टी में तो इसमें सेल का सिग्नल नहीं है, बाय का सिग्नल है चल रहा। प्रॉब्ली मंडे आता होगा, हु नोस, और नहीं आता होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में बाय सिग्नल चल रहा, 2 पुल बैक से। फर्स्ट पुल बैक इज़ वेरी गुड पुल बैक, सेकंड पुल बैक नो जनरली वी विल अवॉइड। ये भी थोड़ा ऊपर जाता नहीं जाता बोल कर नहीं है, बट फर्स्ट पुल बैक इज बेस्ट पुल बैक। यहाँ पे देखो फर्स्ट पुल बैक ये सेल सिग्नल था, फर्स्ट पुल बैक इज बेस्ट पुल बैक। सब्सिक्वेंट पुल बैक में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, ठीक है। ये कर सकते शॉर्ट, उसके बाद में फिर रिवर्स करना पड़ता। इन द सेम वे अभी यहाँ पे अगर आप बाय करें तो प्रॉब्ली इफ यू गेट अ सेल सिग्नल यू हैव टू रिवर्स, अदरवाइज नो हु नोस इट में इवन गो लाइक दिस नो। हिंडाल्को में कंटिन्यूसली एवरी पुल बैक वी आर गेटिंग नो बाय सेटअप देयर। एक बार मैं दिखाता हूँ, देखो हिंडाल्को का चार्ट अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा एंड X2 सिस्टम में मैं ये लाइट वर्जन दिखाता हूँ, देखो लाइट वर्जन 5 मिनट्स। सो एवरी पुल बैक में 15 मिनट्स का X1 विल बी इक्वल टू 5 मिनट्स ऑफ दिस वन। यहाँ पे देखो ना एवरी फोन का सिंबल में यू आर गेटिंग बाइंग प्रेशर एंड कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा विदाउट एनी रूल्स का सिस्टम है। बट इफ यू वांट टू ट्रेड दिस वन नो X1 सिस्टम में काम करना हो तो दिस इज द टेम्पलेट एंड एज ऑफ नो इसमें अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, देखो ये बाय सिग्नल चल रहा बहुत लॉन्ग टाइम से, बीच में दिस सिग्नल हैज कम नॉट वैलिड, नॉट ये भी नॉट वैलिड, ओनली कंटिन्यूशन नॉट वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड। सो क्या हो गया यहाँ पे, जितने भी लोग शॉर्ट करें ना भाई, मार्केट ऊपर से नीचे है ना, सो सम ट्रेडर्स हैव शॉर्टेड हियर, अगेन इट हैज़ गॉन अप, सम शॉर्टेड हियर, अगेन गॉन अप। सो ऐसा जाके देखो क्या हो गया, लोगों को ट्रैप कर दिया। बट एज लॉन्ग एज ये है तो उतना ईजी नहीं है। और आप ये जो है वैलिड सिग्नल आने के लिए, सो वैलिड सिग्नल के लिए वी वांट 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस आए तो इसमें सेल कर सकते हैं। इवन दैट विल आल्सो बी ए वीक सिग्नल। सो वैलिड सिग्नल आए तो एक बार एग्जिट हो जाइए, क्यों आप इसका अगेंस्ट में जाते हैं। डोंट फाइट विथ TDF जोन्स इंडिकेटर, ये जोन्स इंडिकेटर इज मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर इन आवर ट्रेडिंग सिस्टम। सो इससे आप फाइट मत करो। अब दूसरा चार्ट देखेंगे SBI में देख लीजिए, आपको ये भी 0 क्रॉस ओवर हो गया था और ये 0 क्रॉस ओवर के बाद में फर्स्ट बाय सिग्नल। बट ये भी आपको देखो डॉट्स, इसमें 21 डॉट्स है तो इट वुड हैव गॉन डाउन ट्रेंडिंग जोन। बट एक बार चेक कीजिए 5, 10, 15 ऑलमोस्ट नो 21 तो नहीं आया, बट 21 आए तो क्या होता था, इंस्टेड ऑफ हियर नो वी वुड हैव बॉट समवेयर हियर। क्यों बोलते तो इसमें कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई यहाँ पे होता। बट अभी 21 नहीं आया तो दिस विल बी आवर ट्रिगर पॉइंट और इट इज़ इन अप ट्रेंडिंग जोन नो। सो SBI is not going to come down unless नो बैंकिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कल परसों। बट यहाँ पे वेन एवर अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा, नीचे आया तो और एक बार फिर बाइंग आता। सेल सिग्नल का सेटअप मिले तो सेल करो। क्यों बोलते बैंक निफ्टी में ओनली SBI नहीं है ना भाई, SBI नहीं गिर तो दूसरा स्टॉक्स गिरने का चांस है। सो सिग्नल अगर इंडेक्स में आए तो इंडेक्स में ट्रेडिंग कीजिए। नेक्स्ट चार्ट इज IRCTC में भी देखो, इसमें भी अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, 0 क्रॉस ओवर एज हैपेंड हियर। फर्स्ट बाय सिग्नल, दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल। यहाँ पे देख लीजिए देर इज नो रेड कलर डॉट हियर, सो दिस इज अवर 4th बेस्ट बाय सिग्नल। सो इसका परफॉर्मेंस देखो, इसके ऊपर जाते ही देखो ये ब्रेकआउट हो गया, वॉट एवर इज दिस लेवल। एक बार चेक करो इसका लेवल क्या है, 1009 से 1044 तक चले गया। सो दिस इज द पावर ऑफ नो 4th बेस्ट सिग्नल। ऐसा आप सिग्नल्स को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस वन नो कोल इंडिया में भी आपको 4th बेस्ट सेल सिग्नल था। बट यहाँ पे देखो ये भी थोड़ा डॉट्स है, बट स्टिल नो इट हैज़ गिवन यू सम मनी। ये सिग्नल जो आया था ना, दिस इज नॉट वैलिड हियर, इट हैज़ बिकम वैलिड समवेयर हियर। इसका ऊपर बाई करना था, उसके बाद में कंटिन्यूसली फिल्टर इज ग्रीन कलर। सो नो चेंज इन दिस वन, नो सेलिंग प्राइस, दैट इज द रीजन कोल इंडिया इज गोइंग अप। इसमें नीचे आया तो एक बार पुल बैक में बाई कीजिए, उतना ईजिली गिरने वाला नहीं है।
स्ट्रॉन्ग चार्ट है। नेक्स्ट इज़ टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल चल रहा है। यहाँ पे देखो इसके पहले सेल सिग्नल वाज गोइंग ऑन, ये वीक सेल सिग्नल था, बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया यहाँ पे। और ये जो इंडिकेटर HTF इंडिकेटर बोलते हैं, अगर ये इंडिकेटर पिंक है तो विल नॉट कीप पोजीशन, नो ओवरनेट पोजीशन नहीं लगाते। सो ये जो लॉन्ग पोजीशन था वी हैव एग्जिटेड नेक्स्ट डे, सॉरी ऑन दैट डे इटसेल्फ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नो थोड़ा ऊपर नीचे होके फिर अगेन सेम लेवल से फिर अगेन इट हैज गॉन अप। सो अगेन यू कैन टेक री एंट्री। सो यहाँ से देख लीजिए ऊपर चला गया एंड नाउ इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो टाटा स्टील का चार्ट अप ट्रेंडिंग जोन में है, नीचे आता और एक बार फिर बाइंग प्रेशर आता। नेक्स्ट इज दिस वन नो इंडिगो। इंडिगो में एक पॉइंट है टू लर्न, इसमें भी सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज ए वीक सेल सिग्नल एंड इसके बाद में यू गॉट ए बाय सिग्नल। ये बाय सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ और ये सेल सिग्नल नॉट वैलिड सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल है। फाइनली यू गॉट ए बाय सिग्नल, इसके ऊपर ट्रिगर हो गया, फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल है। सो इन दिस कंसल्टेशन देयर इज नो फेक सिग्नल और फेक सेटअप हियर। सो सेटअप जब आता इमीडिएटली वो सेटअप में आप काम कीजिए, आपको जो कंडीशंस हम बोलते हैं वही कंडीशंस के हिसाब से ये पूरा फिटेशन हो जाता। नेक्स्ट इज़ यूपीएल। यूपीएल का चार्ट में भी बाय सिग्नल चल रहा, ये भी फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल है। सो यहाँ पे देखो जीरो क्रॉस ओवर हैज हैपेंड, फर्स्ट सिग्नल आफ्टर दिस वन एंड इट हैज गॉन अप। सो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए, आपको पेशेंस है तो इसमें आना, नहीं तो इंट्राडे में काम करो। और नेक्स्ट इज डीएलएफ। डीएलएफ में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था एंड दिस इज ए बाय सिग्नल नॉट वैलिड हियर, इट हैज़ बिकम वैलिड समवेयर हियर और ये ऊपर चले गया, जीरो क्रॉस ओवर हो गया। सो एक बार पुल बैक आता, मंडे मॉर्निंग पुल बैक आया तो एक बार बाय कीजिए, फिर उसके बाद में इफ यू गेट ए वैलिड सेल सिग्नल देन यू कैन टेक दैट सिग्नल। एंड देख लीजिए इसको हम क्या बोलते बोले तो ये जो सिग्नल है ना बाय सिग्नल, अगर ये वैलिड हुआ तो भी ये जो एरिया है फ्रॉम दिस लेवल टू फ्रॉम दिस जीरो क्रॉस ओवर, दिस इज कॉल्ड नो ट्रैपिंग एरिया। सो इसको अवॉइड करो ना, क्यों इसके पीछे पड़ते हैं आप, छोड़ दो। यू ट्राई टू टेक नो थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, सेकंड बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट, जाके आप इसमें ट्रैपिंग एरिया में क्यों काम करते। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में भी डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था एंड इसमें भी सेल सिग्नल, सॉरी बाय सिग्नल हैज कम। ये भी एज अ टोल्ड यू ना फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नो यहाँ से ट्रिगर हो गया। सो यहाँ से लेके ये जीरो क्रॉस ओवर तक ये ट्रैपिंग एरिया है। सो छोड़ दो, उसके बाद में देखेंगे ना, जीरो क्रॉस ओवर हो गया, अभी सेल आए तो सेल करो, दैट विल बी फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो लॉजिक अप्लाई कीजिए, सिग्नल आया बोल के मैं इमीडिएटली काम करता हूँ बोल तो सिग्नल का स्ट्रेंथ देखना चाहिए, हमेशा सिग्नल का स्ट्रेंथ देख के आपका जो पोजीशन है उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। ICICI बैंक इज नेक्स्ट वन, आई थिंक रिजल्ट्स आने का है, आज आता कल आता है, एक बार चेक कीजिए। इसमें तो हमारे पास बाय सिग्नल चल रहा, अच्छा प्रॉफिट में है। मंडे मॉर्निंग ये अपडाउन हुआ तो भी आपका जो प्रॉफिट हो जाता, बट इफ़ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क नो एक बार एग्जिट होना पड़ता। बट अभी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 बॉक्सेस ग्रीन है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट हु नोस, कोटक बैंक में भी ऐसे ही था स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली बट वो भी सेल में आ गया, 10% डाउन आ गया था। सो दैट इज़ द रीज़न नो, आपका जो डिसिप्लिन है दैट विल सेव यू फ्रॉम दिस वन। इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क यू शुड होल्ड पोजीशन आफ्टर मार्केट आवर्स रिजल्ट्स देते हैं ना, जो भी स्टॉक्स है उसमें आप पोजीशंस रखना बोलते थोड़ा सोच के रखना पड़ता। नेक्स्ट इज़ दिस वन नो भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था बहुत दिन से एंड यहाँ पे देखो ये सेल सिग्नल हैज कम, इट इज़ नॉट वैलिड। सो वैलिड सिग्नल आते तो एक बार इसमें एग्जिट हो जाइए, फिर बाद में नीचे अगेन यू विल गेट, बट अननेसेसरली इसको शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट कर दो आप ट्रैप होने का चांस है। सो हमेशा अप ट्रेंडिंग जोन में अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना चाहिए, डाउन ट्रेंडिंग जोन में हमेशा लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, वो अवॉइड कीजिए उसको, दैट इज़ नो वीक सिग्नल। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, सेकंड बेस्ट भी मिलते रहता, फर्स्ट बेस्ट भी आपको मिलता। नेक्स्ट इज ITC। सो ITC में देख लीजिए आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, बाय सिग्नल हैज कम और ये सिग्नल देखो व्हेन दिस सिग्नल हैज कम, इसमें डिफरेंस एक्चुअली ये थियोरेटिकली वीक सिग्नल है, बट एक पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, जब ये सिग्नल आया था वो टाइम पे डायरेक्टली आपको HTF इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा। जनरली क्या होता है बोलते हो, डाउन ट्रेंडिंग जोन में सिग्नल समवेयर हियर इट विल कम, ओके, ये बहुत मुश्किल से सपोर्ट करता, बट यहाँ पे जब सिग्नल आया था वो टाइम पे HTF भी सपोर्ट कर रहा। सो यहाँ पे ले लो ना सिग्नल, इसके ऊपर बाय कर दो, यू गॉट नो वेरी गुड प्रॉफिट एंड अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा। फिल्टर इज कंटिन्यूस टू ग्रीन, सो देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। ये फिल्टर इज ए सेंसिटिव इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भी आपको सिग्नल नहीं दे रहा, रेड कलर का सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा रहा बोल तो अच्छा ये है। ओवरनेट पोजीशन लगा सकते हैं, बट हमेशा नो व्हेनेवर यू कीप ओवरनेट पोजीशन यू मस्ट नो वेट
बी रेडी फॉर अप एंड डाउन, सीधा नहीं जाता ना भाई ITC, थोड़ा नीचे आता फिर ऊपर जाता, दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू बी रेडी इन स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपके पास उतना पेशेंस नहीं है तो डोंट गो फॉर दिस वन, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए। गो फॉर आवर इंट्राडे सिस्टम, इंट्राडे सिग्नल्स है उसमें काम कीजिए, नहीं तो X1 में ही फुल 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम कीजिए, नहीं तो X2 में पुल बैक्स में काम कीजिए। सो इट्स अप टू यू। हमारे पास तो जो सॉफ्टवेयर है हम आपको ट्रेनिंग देते सिखाते, बाद में कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता एज पर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दैट वन यू हैव टू डिसाइड एंड ट्रेड एज पर द रूल्स। X2 में तो कुछ भी रूल नहीं रहता है, X1 में तो फुल रूल है, बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा 1-2 दिन टाइम लगता समझने के लिए, बिकॉज वी मेड सिस्टम ऑलमोस्ट आफ्टर 6 years ऑफ रिसर्च। सो उतना ईजिली आपको 2 मिनट में 3 मिनट में समझ नहीं आता। जितना हो सके उतना आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी वीक, बट नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी चार्ट, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे चार्ट्स आर देयर 1000 स्टॉक्स के ऊपर डेटा मिलता, दैट इज द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी चार्ट। एंड यहाँ पे जो रूल्स है रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज ITC और डॉ जोन्स और नैस्डैक और यूरो USD और बिटकॉइन, रूल्स आर सेम। सो जो भी रूल्स हम बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए। वैलिड बाई सिग्नल तो बाई करना चाहिए, और वैलिड सेल्स मिला तो सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करना चाहिए, रिकवर करना रिवर्स करके। सो ये सब आपको ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करते हैं। ऑलरेडी लॉट ऑफ वीडियोस आते हैं, एक बार देख लीजिए। लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के एक सेक्शन रहता है, वहाँ पे देखिए तो आपको आइडिया आता। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इफ यू लाइक दिस सिस्टम, यू कैन परचेज दिस फ्रॉम आवर वेबसाइट x1trader.com, and hope this video is useful to you, and let us meet in next video. Thanks for watching this video.